Welcome dear students. In the previous lecture we discussed the introductory part of the chapter The Rat Trap, authored by Selma Lagerlöf. Let us have a fast recap so that we can continue our left or textual part for the day. As you know that the rat trap peddler was a person who was moving from one place to another place so as to sell his rat traps. One day he had an unusual thought, an idea about this world, that the whole world is a rat trap. Everyone has to fall in this trap or to be caught in this trap sooner or later. Some have already been caught and some are still encircling around this rat trap. Thereafter, he reached a cottage on the roadside when he was on his way from one place to another place, and he saw a cottage which belonged to a crofter. Crofter means a tenant farmer, peasant. So the crofter was living alone there. He was not having his family, children. He was waiting eagerly for somebody to arrive there so that he could share his view, thoughts, and emotions with the guest. Fortunately, this rat trap peddler was a suitable person for him. Uh, he could share his views with. So he disclosed his source of earning, that he had a cow. By selling his milk, selling her milk, he earned almost 30 kronos in the last month. He thought that the rat trap peddler was not convinced by his uh, that is his declaration about the money he earned. So he showed him 30 kronos, and rat trap peddler, as you know, he resorted to some petty thieveries. Okay, थोड़ी छोटी मोटी वो चोरी भी कर लेता था. So in the next morning when both of them left for their that is outside commitment, the rat trap peddler returned to the cottage and he stole the 30 kronos and went away from there. So up to here we covered these many points. Let us continue with the lecture. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. So after stealing the money, the peddler thought that he had uh, done a great job. Means he had shown his smartness there by stealing the money. सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है और स्मार्टली किया है. लेदर पाउच को मैंने वैसे ही वापस रख दिया है, शायद क्रॉफ्टर को पता भी ना चले कि उसके 30 करोड़ वहाँ से चोरी हो गए हैं. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, but he was afraid of being caught by somebody. That's why he did not like to follow the public highway. मेन जो रास्ता था उससे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसको डर था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए. 30 करोड़ जो रुपये उसने चुराए हैं. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, सो ही थॉट इट बेटर टू टेक सम अदर वे विच पास थ्रू द वुड्स. मीन्स जंगल, कोई जंगल से दूसरा रास्ता जाता था उसके थ्रू उसने जाना चाहा, सो दैट वो आराम से वहाँ से चुपके से निकल जाता, कोई इसको देखता भी नहीं. ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. सो स्टार्टिंग में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई जंगल के रास्ते में. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, for it was a big and confusing forest which he had gotten into, and after some time he realized that he had chosen a wrong way because he was confused by the forest way path. Okay, and the situation became worse, means it was a situation of worrisome for him. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. So what happened? He was almost sure that he was walking in a definite direction, कि किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से जा रहा है जो वास्तव में उसको कहीं एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा. बट लेटर ऑन ही केम टू नो दैट ही वाज वॉकिंग अराउंड द सेम प्लेस. एक ही जगह के पास से वो बार बार उधर ही घूम रहा था. And he realized that he had been caught in the forest. He was unable to find his path which led to his destination. So वहीं पे वो फंस गया. All at once he recalled his thoughts
about the world and the rat trap. So now to his memory, this fact, that is this thoughts returned, okay, that he thought that the whole world is a rat trap and everyone has to fall in this rat trap. सो अब उसको लगा कि मैं भी इस रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, उसकी थॉट, उसके विचार उसके दिमाग में अभी आ गए. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, ओके, और अब इसकी बारी है इस रेड ट्रैप में फंसने की. ही हैड let himself be fooled by a bait and had been caught. So he was allured by a bait. And what was that bait? Bait means tukda, piece of something. 30 kronos was the bait. और उस 30 kronos का जो प्रलोभन उसको आया, जो एल्योर हुआ, उससे अट्रैक्ट हुआ, that became the cause of his falling in the rat trap. The whole forest, with its trunk and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. So the forest objects like the trees, their trunks, their thick leaves and dead wooden pieces, all were so dense there that it appeared as if he was buried under that forest part, and it was very difficult for him to escape from that, just like a prison from which one can never escape. Okay, एक जेल की तरह उसको लगा. फॉरेस्ट की लकड़ियाँ, गहरे पत्ते और जो भी डेड जो लकड़ियों के जो गट्ठे वहाँ पे पड़े हुए थे, वो सब इतने गहरे थे वहाँ पे, उसको लगा कि ऐसे फंस गया जैसे कोई जेल में फंस गया हो. और इम्पेनेट्रेबल मीन्स विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड, जहाँ से कोई बच के ना निकल सके, इस तरह की जेल में वो फंस गया है. सो इट वॉज लेट इन December, the month was of December. Darkness was already descending over the forest, so the whole forest was almost prevailed under darkness. This increased the danger and increased also his gloom and despair. So as the darkness prevailed there, he became afraid of the situation going to be impending on him. So he became gloom and despair. Despair means hopeless. He became hopeless and sad. उदास हो गया और निराशा भरी उसकी जो है निराशा के बादल उस पर छा गए. Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death. He was so tired that he fell on the ground, thinking that he was not going to find a way out. उसको लगा कि अभी कोई बाहर जाने का रास्ता उसको मिला नहीं है, बहुत थक गया था और वहीं ग्राउंड पे गिर गया, कोलैप्स हो गया. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसको लगा कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया है. ही वॉज गोइंग टू मीट हिज अल्टीमेट डिमाइस, दैट इज डेथ. ओके, उसकी मौत सामने है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, he heard a sound, a hard regular thumping. So when he fell on the ground, because of his tiredness, he could hear a sound there, and he could recognize that sound, a thumping sound. Okay, जैसे कोई किसी चीज़ को बजा रहा हो, किसी की हिट करने की आवाज़ आ रही है. Okay, there was no doubt as to what that was. He raised himself, so he could sense the sound. He could realize that what that sound belonged to. So he raised himself. Okay, उठ के खड़ा हो गया. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought, and he could realize that the sound was of the hammer strokes from an iron mill. एक लोहे की कारखाना था, उसमें जो हैमर से जो हथौड़े से पिटाई करते हैं लोहे की, उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी और वो समझ गया था इस बात को. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. सो ही थॉट दैट ऑब्वियसली इफ द साउंड ऑफ हैमर इज कमिंग, देयर मस्ट बी सम पीपल देयर. सो ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, मीन्स ही पुट ऑल हिज एफर्ट्स, पुट ऑल हिज पावर टू गॉट अप. पूरी ताकत लगाई उसने और अपनी एनर्जी लगाई और वहाँ से खड़ा हो गया. एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. स्टैगर्ड मीन्स अनस्टेडी वॉक. जब आदमी थका होता तो हिलता डुलता हुआ ऐसे ही
लड़खड़ाते हुए चलता है, दैट इज नोन एज स्टैगरिंग। उस डायरेक्शन में जो जिस तरह से आवाज़ आई थी उस डायरेक्शन में वो चल दिया लड़खड़ाता हुआ। द रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। सो जिस जगह से भी आवाज़ आ रही थी वो किसी टाइम में रामसजो आयरन वर्क्स, रामसजो नाम की एक आयरन की जो फैक्ट्री होती थी, आजकल वो क्लोज डाउन है, वहाँ पे छोटा मोटा काम होता है। नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। विद स्मेल्टर मीन्स जहाँ पे आयरन को मेल्ट किया जाता था। रोलिंग मिल्स मीन्स वहाँ पे रोलिंग मिल थी जहाँ पे आयरन से मेटल की शीट बनाई जाती थी। एंड फोर्ज जहाँ पे आयरन की शेपिंग की जाती थी, ढलाई की जाती थी टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट appliances and implements of the iron metal. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. So in the summer time, समर के टाइम में वहाँ पे बड़े बड़े जो गाड़ियाँ, लोडेड नॉट गाड़ियाँ, बार्जेज मीन्स लॉन्ग फ्लैट बॉटम एंड स्काउज वर बोट्स. So long boats and scows were flat bottomed boats, like you can say they were in this shape, okay, flat bottom, not this curved shape bottom, okay. So इस तरह की वहाँ पे जो बोट्स थी उनके ऊपर आयरन के जो बने हुए मटेरियल थे वो उसके ऊपर लोड करके भेज जाते थे, स्लिट डाउन द कैनाल, फिर वो कैनाल के थ्रू जाती थी वो बोट्स, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और उसके बाद में वो एक बड़ी सी इनलैंड लेक थी जिसमें वो तैर के जाते थे. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स. सो चारकोल क्रेट्स, एज यू नो, क्रेट्स मीन्स द डिग अप्स, ओके, बड़े बड़े गड्ढे, चारकोल के बड़े बड़े गड्ढों से जो कोल का जो डस्ट निकलता था वो वहाँ पे विंटर के टाइम में रोड के साइड में जमा हो जाता था, ओके. So generally it happens that wherever excavation of charcoal takes place, a blackish dust flies in all direction and it settles down in and around that charcoal or excavation place and around the roads also. So the environment is fully polluted in such places. If you talk about the Darbhanga district of Bihar, you will find this kind of environment there. During one of long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. So pig iron is the raw iron, kacha loha, okay. Long dark evenings just before Christmas, so Christmas से पहले एक दिन शाम को during the night, the master worker of that, you can say, that forge with his helper sat near the dark forge, and forge is the furnace where the melting and shaping of the iron takes place. उसके पास बैठे हुए थे. Furnace means the furnace, a place where high temperature is used to melt the metal, okay, भट्टी. वेटिंग फॉर पिग आयरन, और वहाँ पे वो जो पिग आयरन, जो कच्चा लोहा उन्होंने डाल के रखा था उस भट्टी में, उसके लिए वेट कर रहे थे. टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनविल, सो दैट उसको निकाल के, एनविल मीन्स ए हार्ड प्लेस ऑन विच दिस आयरन पीस इज पुट सो एज टू गेट इट हैमर्ड. उसके ऊपर रख के, एक हार्ड पीस होता है और उसके ऊपर जो रख के हैमर को, आयरन पीस को उससे हैमरिंग करते हैं उसके, ओके, ताकि उसको फ्लैट या शेप कर सकें. यू माइट हैव सीन दिस आइटम विद द blacksmiths who are working in the markets to manufacture different items locally made, okay. So thereafter every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, और
लॉन्ग आयरन बार, उनमें से बीच बीच में एक एक आदमी उठता और बड़ी सी लोहे की छड़ के साथ उसको हिलाते, उसको आयरन के जो पीस वो उसके अंदर कोयले में भट्टी में डाल के रखते थे। रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, थोड़ी देर बाद में वो पसीने से लथपथ बाहर निकलते। दो एज वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, बट दे यूज टू वियर ए पेयर ऑफ वुडन शूज एंड ए लॉन्ग शर्ट मीन्स ओवरऑल टाइप जो होता है फुल बॉडी कवर करने के लिए, वो एक कस्टमरी तौर पे वो पहनते थे, उसमें भी उनको पसीने आते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज एंड ऑब्वियसली इन द फोर्ज देयर would many sounds would appear or emerge from there. That sound, those sounds belong to the big bellows, ground and the burning. Big bellows means the item or the balloon shaped item which is used to blow the air in the coal so as to burn it. उसको जलाने के लिए जो उससे हवा मारते हैं, ऐसे बैलून टाइप होते हैं, उसको बोलते हैं बेलोज। सो उनकी ग्रोनिंग, उनकी साउंड आती थी। बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ जो कोयला होता है वो भी क्रैक जब होता है, चटकता है, तो उसकी भी साउंड आती है। सो ये साउंड वहाँ से आती थी। द फायर बॉय शाउल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। सो जो फायर बॉय था उसका काम था सावर्ड, सावर्ड मीन्स फावड़ा टाइप जो होता है उससे, ही वुड थ्रो द चारकोल in the mouth, in the jaw of the furnace with a great deal of clatter means उस जब डालते थे कोयला उसके अंदर तो भी उससे एक क्लैटर मीन्स एक साउंड प्रोड्यूस होती थी। सो डिफरेंट साउंड्स वहाँ से आती थी। आउटसाइड रोड दी वाटरफॉल, और बाहर जो है पानी गिर रहा था उसकी आवाज़ आती थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट दी ब्रिक टाइल्ड रूफ, जब नॉर्थ साइड से हैवी विंड चलती थी तो उनकी जो बारिश की बूंदें थी वो छत के ऊपर टाइलों पे गिरती तो उसकी भी एक आवाज़ आती थी। सो दीज मैनी साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड इन द आयरन मिल। इट वाज प्रोबब्ली ऑन अकाउंट ऑफ all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. So इन्हीं सभी साउंड्स, इन्हीं सभी आवाज़ों की वजह से जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो शायद नोटिस नहीं कर पाया कि कोई आदमी वहाँ पे घुस गया है आके। कौन आया था? पैडलर। और जब तक वो बिल्कुल फर्नेस के पास आके खड़ा नहीं होगा पैडलर, तब तक मास्टर ब्लैकस्मिथ उसको नोटिस ही नहीं कर पाया कि कोई वहाँ पे आ गया है, बिकॉज ये सब साउंड्स और थी और उसके जो फुटस्टेप की जो साउंड थी वो उसको सुनाई नहीं दी। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ नाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंज। सूटी पेंज मीन्स ब्लैक पेंज, जो काले पड़ जाते हैं शीशे खिड़कियों की, और वहाँ से जब कहीं से भी दूर से जलती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं किसी को, तो भी इस तरह के वेगाबाउंड्स के लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। नॉर्मली वो लोग वहाँ पे अपने आप को रात में सर्दियों से बचाने के लिए इस तरह की जो फर्नेसेस थे उनमें आ जाया करते, दूर से इस तरह की आग की लपटों को देख के कि यहाँ पे कोई फर्नेस है, और नाइट बिताने के सबसे बढ़िया शेल्टर यही हो सकता है। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और इस तरह वो अपने आप को, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए ये जो फायर प्लेस होते थे फैक्ट्रियों के, उनके पास आ जाया करते। द ब्लैकस्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder, the person who has entered some place without any invitation, right? So वो उसको बड़ी ही indifferent eyes से, और you can say unwelcomed जो आईज होती हैं, जो नज़रें होती हैं, उनसे उसको देखा इंट्रूडर को मास्टर ब्लैकस्मिथ ने। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेड ट्रैप, हाउ ही वाज लुकिंग, रेड ट्रैप पेडलर, हाउ ही वाज लुकिंग। सो ही लुक द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, उस तरह के लोग पैडलर के जैसे जनरली दिखते हैं, जैसे करते हैं, वैसे दिख रहा था। व्हाट वाज देयर? लॉन्ग बियर्ड थी उसकी, डर्टी रैग्ड, ही वाज डर्टी मीन्स he had not taken bath for many days, you can say. Ragged means he was wearing the torn clothes, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग इन हिज चेस्ट, डेंगलिंग मीन्स हैंगिंग, और कुछ जो रेड ट्रैप्स हैं वो उसके
चेस्ट पे लटक रहे थे, जिनके वो बेचने के लिए निकला था वहाँ पे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोटेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। सो पैडलर यहाँ पे परमिशन मांगता है मास्टर ब्लैकस्मिथ से, ताकि रात में वो वहाँ पे उस फैक्ट्री में बिताए और अपने आप को, बॉडी को गर्म करे उस आग से। बट द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोटेड ए हॉटी कंसेंट मीन्स इनडिफरेंट एग्रीमेंट विदाउट सेइंग एनी वर्ड। कोई भी उसको एक भी वर्ड नहीं बोला, उन्होंने न वेलकम किया उसका, और जस्ट एक कंसेंट दिया कि ओके यू कैन स्टे देयर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प मीन्स पेडलर, vagabond, a person who wanders from one place to another place is known as a tramp, vagabond, wanderer. Did not say anything, उसने भी कुछ नहीं कहा इधर। ओके, he did not say either, मतलब पेडलर ने भी कुछ नहीं कहा। he had not come there to talk but only to warm himself and sleep। वो कहता भी क्या, because he did not come there to talk about anything but his only purpose was to warm his body near the furnace and to sleep there। वहाँ सोने के लिए आया था, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए आया था, बात करने के लिए नहीं आया था। इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और उन दिनों आयरन मास्टर का जो ओनर था वो बहुत ही फेमस था, आयरन मास्टर था। रामसजो आयरन वर्क्स का जो मालिक था वो एक फेमस आयरन मास्टर था, और उसका एक ही पर्पज़ था कि जो अच्छा आयरन है उसको मार्केट में भेजा जाए, शिपिंग किया जाए उसका। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection। So वो दिन रात वहाँ पे आके देखते रहता था, इंस्पेक्शन करता था, ऑब्जर्व करता था कि हाउ द वर्कर्स वर वर्किंग देयर, राइट। और आज भी वो अपने एक जो नाइट में जो राउंड लगाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उस इंस्पेक्शन के राउंड पे आया हुआ है वहाँ पे फोर्ज में। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वेज टू क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज wet rags। Naturally the first thing he saw, so when he entered, that is owner of that iron mill, when he entered his forge, he noticed that there was a tall ragamuffin। Ragamuffin is a person who is ragged and a dirty fellow, means who has worn torn clothes, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, having a shabby look, जिसकी बड़ी अभद्र लुक हो, अभद्र दिखाई देता है, और जो अपने आप को फर्नेस के पास में इतना क्लोज लेके आया हुआ है कि उसके कपड़ों से भी, उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं उनसे भी हीट निकल रही है, उनसे भी स्टीम निकल रही थी। ओके, सो द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स। आयरन मास्टर के जो ब्लैकस्मिथ्स थे वो एग्जाम्पल मीन्स उसकी तरह उन्होंने नहीं किया, ऐसे नहीं कि बिना उसकी पहचान किए, विदाउट एनी आइडेंटिटी उसको अलाउ कर दें। नो, हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जो ब्लैकस्मिथ थे उन्होंने क्या किया था, डेन मीन्स बेंड डाउन टू लुक एट समथिंग, किसी को झुक के देखना, ठीक से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वो स्ट्रेंजर की तरफ, कोई भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी तरफ झुके भी नहीं, देखा भी नहीं ठीक से उनको। लेकिन जो आयरन मास्टर था वो ऐसा नहीं करने वाला था। ही वॉक क्लोज टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसके पास गया, उसको बड़े ठीक से उसने देखा। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face। उसके बाद में उसका जो स्लाउच, जो डर्टी हेड था ना, स्लाउच मीन्स डर्टी, उसको उसने फाड़ दिया, सो दैट वो उसके चेहरे को ठीक से देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलाफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। मीन्स अब ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। जो आयरन मास्टर है, मालिक है उस फैक्ट्री का, वो पैडलर को गलत समझ लेता है। वो समझता है कि ये उसका पुराना फ्रेंड है कैप्टन नील्स। सो उसको बोलता है, ओ यू आर नील्स, कैप्टन नील्स। ओ सैड, हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिख रहे हैं। मीन्स ही वॉज सरप्राइज्ड एट हिज लुक, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलाफ। ही सैड, हाउ यू डू लुक, मीन्स उसको कैप्टन नील्स समझ लेता है आयरन मास्टर। The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramasjo and did not even know what his name was। Contrary to that, इसके विपरीत
पैडलर ने इस आयरन मास्टर को इससे पहले कभी रामस जो आयरन बक्स में देखा नहीं, क्योंकि ये पहले कभी यहाँ पे आया भी नहीं और उसका नाम तक भी नहीं जानता था। वेयर एज आयरन मास्टर इसको अपना फ्रेंड मानता है, फ्रेंड समझता है। सो दिस वॉज द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी टू, रेदर ऑन द पार्ट ऑफ द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ही गलती से उसको कोई और आदमी समझ बैठा था। बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। अब पैडलर है वो भी इस जो ओकेजन है, ये जो मौका है, इसका एंटी एडवांटेज लेना चाहता है, वो इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि ये इसको अपना एक पुराना परिचित समझ बैठा है आयरन मास्टर, और इसका उसको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है उसको कुछ क्रोनोर्स, कुछ मनी उसको देगा। वो उसकी सिंपैथी लूटना चाह रहा था। सो वो उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बताना चाह रहा था। ठीक है, अगर ये गलत समझ रहा है तो गलत ही समझने दो, मुझे कुछ इसका फ़ायदा होगा, मुझे कुछ क्रोनोर्स दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। सो वो उसको एक बार एकदम ही, मीन्स जो आयरन मास्टर को पैडलर नहीं चाहता था कि इसका जो भ्रम है उसको दूर किया जाए। अनडिसीव, डिसीव मीन्स टू बिट्रे समबडी, धोखा देना और धोखे से निकालना, अनडिसीव। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। डाउन हिल मीन्स थिंग्स हैव गॉन वर्स। अब ये बोलता है आयरन मास्टर को कि हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर सोचता है ये पुराना कैप्टन है उसका फ्रेंड, सो बोलता है आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना था, ओके, आपको नौकरी नहीं छोड़नी थी। That was the mistake. If only I had still been in service at the time, it never would have happened. आयरन मास्टर बोलता है ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, अगर मैं अभी भी सर्विस में होता मैं आपको रिजाइन नहीं देने देता, और ये स्थिति कभी भी आपके साथ नहीं होती जैसे आप अभी फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहे हैं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, लेट अस कम होम, ओके, बोलता है व्हाट एवर हैपेंड, अभी आप हमारे साथ घर पे चलिए। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। So जो ये आवारा आदमी था, जो ये रेड ट्रैप पैडलर था, इसको लगा manor means a palace of or a big house of a landlord, कि उसके घर पे जाना, वहाँ पे उसको एज ए रेजिमेंटल कॉमरेड वो उसको रिसीव, कॉमरेड मीन्स कंपेनियन, साथी, उसको रिसीव करना उसके घर पे और उसकी रिस्पेक्ट करना, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा रेड ट्रैप पैडलर को, बिकॉज ही वॉज एट फॉल्ट, ही हैड हिडन हिज आइडेंटिटी, सो ही डिड नॉट थिंक इट राइट। नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। सो रेड ट्रैप पैडलर बोलता नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि मैं आपके घर पे जाऊँ, एंड वो काफ़ी अलाउंड मीन्स ही बिकेम कॉशियस, उसको डर था कि उसने 30 करोड़ चुरा के रखे हुए हैं, कहीं इसके घर पे जाएगा और इसको पता चलेगा तो इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज मिसडीड्स। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, टू गो अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। सो उसके दिमाग में 30 करोड़ की जो चिंता थी वो हमेशा चलती जा रही थी, और उसने सोचा कि मैनोर पे मीन्स उसके आयरन मास्टर के घर पे जाना तो ऐसा है कि अपने आप को स्वेच्छा से वॉलंटरली शेर की गुफा में डाल देना, मीन्स अपने आप को डेंजर में। ही थॉट दैट वॉलंटरली गोइंग एट द आयरन मास्टर्स होम वुड बी एज गुड एज throwing himself in a dangerous situation or a dangerous place like the lion's den. So he objected to that. He did not agree to go home with him. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Sneak means stealthily, चोरी से, चुपके से. Inconspicuously means unnoticed, unclearly. So उसका तो एक ही वहाँ पे मकसद था. He wanted a chance means वहाँ पे वो ओनली सोने के लिए, रात बिताने के लिए आया हुआ है, और उसके बाद में वहाँ पे वो चुपके से बिना किसी की नोटिस के हुए वहाँ से निकल जाता. This was his purpose of coming there. The ironmaster assumed that if
दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर को लगता है कि जो पेडलर है वो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, इसलिए वो एम्ब्रेस्ड मीन्स ही वाज फीलिंग शाई ऑफ हिज सिचुएशन, ऑफ हिज कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन, ओके, पिटिएबल कंडीशन। सो उसको लगा कि उसको शर्म आ रही है, उसकी जो दयनीय स्थिति है उसके ऊपर, इसलिए वो मेरे साथ हमारे घर पे नहीं चल रहा। बट द थिंग वाज डिफरेंट देयर। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर लेफ्ट ओवर पोर्शन फ्रॉम हियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।